जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं जून 2022 का पास पेपर, उसका क्वेश्चन 1 हमने देखा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं रीड करूंगा क्वेश्चन 2 को, आप मेरे साथ रीड करें। उसके बाद जो हमारा SOP है आप इसे ख़ुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे एंड देन फिर आप जो है सजेस्टेड सॉल्यूशन को देखेंगे। तो मैं रीड कर रहा हूँ। ये बेसिकली जैसे कि हमने ओवरव्यू में बताया, ये बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 4 वैल्यूएशन मेथड्स के थ्रू एक बिजनेस यूनिट की वैल्यूएशन कराई गई है और फिर कुछ डिस्कशन पार्ट है। तो मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। पामीर एस्टेट्स लिमिटेड। पामीर इज अ लैंड एंड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिस्टेड ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। Pamir has significant property interest across Pakistan, resulting in 5 separate operating divisions. Each division specializes in a different type of property. The 5 divisions are office buildings, retail buildings, industrial buildings, residential buildings, and hotel buildings. Revenue is generated through 3 separate services. One is design and build of new properties for Pamir to lease or sell on behalf of third-party clients. Property management on behalf of clients and leasing of Pamir owned property. तो आप थर्ड पार्टी के लिए भी डिज़ाइन एंड बिल्ड करते हैं, आप मैनेज भी करते हैं और आप अपनी प्रॉपर्टीज़ भी लीज आउट करते हैं। A recent review of divisional trading identified strong performance in 4 of the 5 divisions. 4 divisions तो आपके बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। The industrial buildings division did not perform well, generating only 10% of the Pamir's leased property income, despite comprising 25% of Pamir's property portfolio by value. 25% जो आपकी बिजनेस को जो अकाउंट फॉर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, वो रेवेन्यू के टर्म्स में सिर्फ 10% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो आपका कंसर्न ये है कि इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल, एंड विच इज़ a valid concern. The industrial buildings division does not currently have any properties that are managed on behalf of third parties. As a result, the board has decided to sell off the industrial buildings division and use the proceeds to invest and expand the residential buildings division. इसमें चूंकि कोई थर्ड पार्टी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, आपकी अपनी है, तो आप सोच रहे हैं कि इन्हें डिस्पोज करें और उस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें। किस लिए? जो दूसरा परफॉर्मिंग यूनिट है उसमें उस पैसे को हम इन्वेस्ट करें। In order to dispose of the industrial building division, the board has approved the creation and subsequent sale of a new company, Kurumdi Buildings Limited. Pamir will transfer all the trade and net assets of the industrial building division to this Kurumdi, which will continue to be managed by the existing industrial buildings division management team until the new company is sold. आप एक नई कंपनी कुरुंडी के नाम से आप एक बनाएंगे, उसमें आप कुरुंडी के अंदर आप अपने इंडस्ट्रियल डिविजन्स की प्रॉपर्टीज़ को उसमें डाल देंगे और उसके बाद जो है फिर आप उसे डाइवेस्ट कर लेंगे। The board has not been able to identify a private buyer for Kurumdi. Therefore, it intends to realize the sale of the industrial buildings division by seeking a separate listing for the newly formed company on the Pakistan Stock Exchange. आप क्या कर रहे हैं? आपको प्राइवेट इन्वेस्टर तो कोई नहीं मिला जो कि पूरा का पूरा यूनिट खरीद ले, तो आप ये सोच रहे हैं कि एक कंपनी जो आप बनाएंगे उसको फिर आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करें, लिस्टिंग के थ्रू आप अपना ओनरशिप स्टेक डाइवेस्ट करें। As a member of Pamir's finance team, you have been asked to determine the likely valuation of Kurumdi so that this can be incorporated within the stock exchange listing prospectus, which will be issued to attract investors. Investors के लिए आपको prospectus देना है, तो आप एक valuation भी करें और उसके लिए आपको कहा गया है कि आप इसकी possible valuation निकालें। Your analysis should include a valuation of Kurumdi using each of the following valuation methods. One is free cash flow, नेट एसेट वैल्यूएशन, पी रेशियो बेस्ड वैल्यूएशन एंड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। इन 4 मॉडल्स के थ्रू हमने वैल्यूएशन करनी है। फॉलोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड बाय द पामीर्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज फॉर कुरुंडी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स डिवीजन। कुरुंडीज लेटेस्ट अर्निंग्स आर ₹30 बिलियन। इस वक्त जो अर्निंग्स हैं वो 30 अरब की हैं। हाउएवर देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज दैट आर नॉट ऑक्यूपाइड। Difficult economic and trading conditions in years 2020 से लेके 2022 तक के 2 सालों में have resulted in the corporate failure and the subsequent liquidation of some industrial building occupants. This has resulted in writing off of bad debts and a higher percentage of vacant industrial properties than was budgeted for by the industrial buildings division. तो पिछले 2 सालों की तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपकी जो अर्निंग्स हैं वो 30 अरब जो है आपकी अपनी बजट से कम है। The industrial buildings management team are confident about 2023 economic prospects and believe that the proportion of
vacant buildings within the industrial buildings portfolio will reduce, which supports the forecast growth in earnings. 23 के बारे में आपकी forecast ये है कि you will be able to lease out more buildings और आपकी vacant buildings कम होंगी क्योंकि economic prospects अच्छे नज़र आ रहे हैं. Historically, earnings have been similar to cash flows with lease payments paid in advance on quarterly basis. The expected free cash flows before interest after tax. Expected free cash flows before interest after tax यानी PBIT 1 minus T कह लें आप, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को उन्होंने लिया है. स्टेटेड इन टुडेज प्राइसेस यानी आज की प्राइसेस में जो फ्यूचर के फ्री कैश फ्लोज बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, जो कि बेसिकली हम जब फ्री कैश फ्लो टू वैल्यूएशन, फ्री कैश फ्लो टू कंपनी के थ्रू वैल्यूएशन करते हैं तो हम वो लेते हैं, तो वो हमें गिवन है ₹35 बिलियन इन ईयर 2023. 2024 में ₹40 बिलियन, 2025 में ₹45 बिलियन. Kurumdi anticipates that there will be no vacant properties after a period of 3 years. ये free cash flows before interest and after tax. Interest से पहले लेकिन tax incorporate करने के बाद तो free cash flow to company हो गया जिसे आप कह रहे हैं. Kurumdi anticipates that there will be no vacant properties after a period of 3 years and thereafter earnings and cash flows will increase in line with inflation. यानी 25 के बाद जो growth है, जो inflation rate है, उसी के हिसाब से आपकी cash flow की growth है. The current level of inflation is 10%. However, the board anticipates inflation will decrease to 8% in 23, 6% in 24, and 4% in 25, and then remain at an average rate of 3% thereafter. तो जब हम nominal cash flows बनाएंगे तो 23 को हम इन्फ्लेट करेंगे एट रेस्पेक्टिव 8%, 24 को हम 2 इन्फ्लेशन रेट्स लगाएंगे. हमें पता है मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स में कैसे हैंडल करते हैं कैश फ्लोज को. 24 के कैश फ्लोज इन्फ्लेट होंगे पहले बाय 8% एंड देन बाय 6%. 2 साल की इन्फ्लेशन लगेगी क्योंकि ये आज 2022 की प्राइस लेवल्स पे है. 25 में जब हम जाएंगे तो 8% से करेंगे, 6% से करेंगे और फिर 4% से करेंगे और उसके बाद हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हुए 3% इन्फ्लेशन रेट को एज अ ग्रोथ ले लेंगे और फिर हम वैल्यूएशन कर लेंगे. फिर आइए एसेट्स पे. द करंट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय कुरुमडी इज ₹420 बिलियन. दिस इंक्लूड्स ₹40 बिलियन इन रेस्पेक्ट ऑफ शालकोट इंडस्ट्रियल, अ बिल्डिंग लोकेटेड इन क्वेटा. Shalkot is currently vacant, which is a concern for the board. There has been significant damage caused by land subsidence, and it is unlikely that the building will be safe for future use. The most likely outcome of this building is that it will be demolished at a cost of ₹2.5 billion, as the land is now considered unsuitable for development. The cleared land could be sold for an estimated ₹15 billion only. तो ये जो 40 अरब की प्रॉपर्टी है, इसके जो डैमेज की वजह से आपको डैमेज ठीक करना पड़ेगा. 2.5 बिलियन वो कॉस्ट है और उसकी फिर जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 15 बिलियन है. Pamir has submitted an insurance claim for ₹40 billion in respect of Shalkot. However, the insurance company is disputing this claim on the grounds that earlier subsidence had not been disclosed to the insurance company by Pamir. So the claim cannot be accepted. तो ये कह रहे हैं कि आपने जो पहले डैमेज हुआ है या इस लैंड का प्रॉब्लम था ये हमें बताया नहीं, तो हम इसके लिए इस डैमेज को वो क्या कर रहे हैं, वो इसको क्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और इसको डिस्प्यूट कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी. Debt finance. Pamir's property portfolio has been used as a security for some of the debt finance within the business. ₹50 billion of debt is currently assigned to the industrial buildings division, which will be transferred to Kurumdi when the corresponding assets are transferred. तो आपकी बैलेंस शीट पे जो लायबिलिटी आएगी, जो डेट है वो 50 अरब की है. ये हमारे लिए नेट एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन के लिए भी है और फ्री कैश फ्लो के लिए भी रेलेवेंट है. जब आप फ्री कैश फ्लो तो कंपनी के थ्रू वैल्यूएशन करते हैं, सो यू अराइव एट अ वैल्यू ऑफ द कंपनी E प्लस D बोथ. उसमें से D माइनस D की वैल्यू माइनस होगी तब जाके E पे पहुंचेंगे. इज दैट ओके? याद आया हमें? फिर पामीर्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें. 2 मेथड्स की इन्फॉर्मेशन तो हमें पूरी हो गई, फ्री कैश फ्लो और नेट एसेट्स की. अब नीचे आते हैं. द डायरेक्टर्स रिक्वायर दैट द फॉलोइंग पामीर्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बी यूज्ड टू वैल्यू कुरुमडी वेयर रेलेवेंट एज इट कैन बी अज्यूम्ड टू बी एप्रोप्रिएट फॉर कुरुमडी. वो कह रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करें वैल्यूएशन के लिए. ठीक है, यूज़ कर लेते हैं. पामीर यूजेज अ नॉमिनल 10% वैक. नॉमिनल वैक गिवन है. डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो टू कंपनी को डिस्काउंट भी हम वैक से करते हैं.
For the lettings business, Pamir's quoted equity beta is currently 0.8. या आपको equity beta given है. Pamir's PE ratio is currently 19.9, which compares favorably with the industry average of 14.6. So you have a very high PE ratio as compared to industry, but हमें board ने कहा है आप इसको use करें valuation के लिए and it is relevant. Pamir currently retains 60% of earnings for future investment. Historically, shareholders have seen annual growth in dividends, average at approximately 10%. आप 40% पे आउट करते हैं, 60% क्या करते हैं, रिटेन करते हैं. Historically, shareholders have seen annual growth in dividends, average at approximately 10%. The risk-free rate of return can be assumed to be 9% and the equity market premium is currently 6%. Equity market premium 6% है, यानी RM minus RF is 6 and RF is 9%. Requirement क्या है? पहला part, determine a range of valuations. Of course, different methods के through different valuations आएंगी. Determine a range of valuation using the valuation methods set out by the Pamir's board of directors and recommend, along with reasons, an issue price at which the new shares in Kurumdi will be offered to investors prior to its commencing to trade on the Pakistan Stock Exchange. वो कह रहे हैं रेंज ऑफ वैल्यूएशन बताएं फॉर कुरुमडी और फिर वो क्या इशू प्राइस है जिस पे आप शेयर्स ऑफर कर रहे होंगे, विच शुड नॉट बी टू हाई ताकि कोई सब्सक्राइब ना करे और शुड नॉट बी टू लो ताकि ऐसा भी ना हो कि आपको पामीर को नुकसान हो जाए. तो वो क्या एप्रोप्रिएट प्राइस होगी कि आप जिस पे ऑफर करें बिफोर द ट्रेड कमेंसेस ऑन PSX, यानी लिस्टिंग के लिए आपकी क्या प्राइस हो. फिर पार्ट बी है, पार्ट सी है, इनको भी हम करेंगे अटैम्प्ट. ये डिस्कशन पार्ट्स हैं. तो पहला जो मेजर पार्ट है 14 मार्क्स का, रेंज ऑफ वैल्यूएशंस, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं. वैल्यूएशन में सबसे पहला मेथड जो है वो क्या है, वो है फ्री कैश फ्लो. तो पहला मेथड है फ्री कैश फ्लो मेथड और हम फ्री कैश फ्लो तो कंपनी के थ्रू वैल्यूएशन करने जा रहे हैं. तो हमें कैश फ्लो 3 साल के गिवन है. हम है टाइम ज़ीरो जो कि 2022 पे, ईयर 1 इज़ 2023, ईयर 2 वुड बी 2024, ईयर 3 वुड बी 2025 और फिर यहाँ के बाद एक कांस्टेंट ग्रोथ है रुपीज़ इन बिलियंस. ठीक है ना, बिलियंस में हमें इंफॉर्मेशन है, हम बिलियंस ही को यूज़ करेंगे. तो फ्री कैश फ्लो टू कंपनी जो हमें गिवन है वो रियल है. हम उसे क्या करेंगे, नॉमिनल बनाएंगे, हम उन्हें इन्फ्लेट करेंगे. हमें गिवन है 35, तो हम करेंगे फ्री कैश फ्लो टू कंपनी और ये हम करेंगे नॉमिनल जब हम ये लेते हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 35 इंटू 1.08, ऐसा ही है. फिर यहाँ होगा हमारे पास 40 इंटू 1.08 इंटू 1.06. फिर होगा हमारे पास 45 को हम 3 उससे करेंगे, 45 इंटू 1.08 इंटू 1.06 इंटू 1.04 होना चाहिए, ऐसा ही है. ईयर 3 और फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे ईयर 4 और फिर इन्फिनिटी. अच्छा जी, तो हम कैलकुलेट करते जाएं. 35 इंटू 1.08 क्या फिगर बन गई, 37.8. जो दूसरा है 40 इंटू 1.08 इंटू 1.06, 45.8. दिस इज 45.8. फिर हम आगे बढ़े, 45 गिवन है हमें, 45 इंटू 1.08 इंटू 1.06 इंटू 1.04, ये बन गया 53.57 यानी 6. तो 53.6. अच्छा, अब जो ईयर 4 ऑनवर्ड्स हैं वो यही कैश लो, उसके लिए ये टाइम 0 हो जाएगा, राइट. और ये ईयर 1 और फिर आगे बढ़ते जाएंगे. तो फॉर कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लोज ईयर 4 टिल इन्फिनिटी, उनकी जब हम वर्किंग करेंगे तो जब उनकी पीवी हम निकालेंगे तो हम कहेंगे वही फॉर्मूला जो कैश फ्लो एट ईयर 3, यानी जो कि बन जाएगा डी नॉट इन के लिए 1 प्लस ग्रोथ रेट एंड देन वैक माइनस ग्रोथ रेट. ऐसे ही है जैसे के ही होती है, चूंकि
जब हम ऊपर डालते हैं डिविडेंड्स तो क्या ही होती है, या फ्री कैश फ्लो टू कंपनी ले रहे हैं तो फ्री कैश फ्लो ईयर 3 का लेंगे तो टाइम 0 हो जाएगा उसके लिए, ईयर 4 टिल इन्फिनिटी के लिए। तो अगर हम वैल्यूज डालें तो शुड बी 53.6, उसके बाद ग्रोथ है 3%, डिस्काउंटिंग हमारी 10% से होगी जो कि वैक है। तो जब हम ये वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू क्या आ गई कैलकुलेट करें, 53.6 इंटू 1.03 डिवाइड बाय 0.07, ये बन गई 788.7। ये कहाँ आएगी, ये एज एट ईयर 3 एंड आएगी, यानी ये जो वैल्यू है ये इफेक्टिवली यहाँ की इस टाइम जोन की वैल्यू है। तो हम यहाँ डाल दें, है ना, तो ये आ जाएगी 788.7। तो अब हम इनको डिस्काउंट कर लें, ये मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, जो समझाने के लिए बताया ये ईयर 0 है टिल इन्फिनिटी फॉर द पर्पस ऑफ हमारा जो मॉडल है ग्रोथ का। तो ज़रा इन सबको अब हम टोटल करें और डिस्काउंटिंग करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 37.8, 45.8, इनको ऐड करें 788.7 प्लस 53.6, ये बन गया 842.3, राइट। अब इनको डिस्काउंट करें, ऐसे डिस्काउंट करें 1.1 पावर 1, 1.1 पावर 2, 1.1 पावर 3, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ कंपनी, वैल्यू ऑफ कंपनी यानी E प्लस डी। तो वो क्या फिगर बन गई, कैलकुलेट करें वैल्यू ऑफ E प्लस डी। तो डिस्काउंट करें इन सबको, डिस्काउंट जब हम करते हैं इनको तो ये बन जाएगी 37.8 डिवाइड बाय 1.1 प्लस 45.8 डिवाइड बाय 1.1 पावर 2 प्लस 842.3 डिवाइड बाय 1.1 पावर 3, 705। तो 705.1 या 0.1 को भी अगर हम छोड़ दें तो 705 तक तो हम बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। राउंड ऑफ करके 705 पे हम पहुंचे। तो 705 इसमें से आप लेस कर दें द वैल्यू ऑफ डी, डी इज 50। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आ गई, ई की वैल्यू वो फ्री कैश फ्लो मॉडल के थ्रू क्या आ गई, माइनस कर दें आप 50, तो ये बन गया 655 राउंड ऑफ करके 655 बिलियन रुपीस इन बिलियन। तो फ्री कैश फ्लो मॉडल के थ्रू जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो आ गई 655 बिलियन, राइट, 655 बिलियन। अच्छा, अब ये जो 655 बिलियन की वैल्यू है ये कैलकुलेट करते हुए जब हमने डिस्काउंटिंग की है तो हमने एक चीज़ ज़रूर कर दी है, हमने इग्नोर की है वो क्वार्टरली। कुछ कह रहा था, कुछ में कहा था कि क्वार्टरली लीज हमारे पास इनफ्लोज हैं, हमारे इनफ्लोज भी होंगे आउटफ्लोज भी होंगे। इनफ्लोज के लिए उसने कहा था कि लीज क्वार्टरली इन एडवांस आ रहे हैं, उस चीज़ को हमने इग्नोर कर दिया, इग्नोरिंग क्वार्टरली लीज कैश फ्लोज। तो हमने इनको एनुअल बेसिस पे किया है। उसकी वजह ये है कि हमें नहीं पता कि एक्चुअल रेवेन्यू के कैश फ्लोज हैं कितने जो क्वार्टरली हैं, कितने एनुअल कैश फ्लोज हैं। फिर दूसरा ये कि जब हम फ्री कैश फ्लो ईयर 4 ऑनवर्ड्स जो मेजर वैल्यूएशन आ रही है उसमें फिर हम क्वार्टरली करें, फिर ग्रोथ को क्वार्टरली, रेट को करें। आई डोंट थिंक के दी मार्क्स, क्योंकि चारों मेथड से वैल्यूएशन करनी है, जस्टिफाई उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और बस इतनी हमने वर्किंग कर दी और ये आपने नोट लिख दिया, इग्नोरिंग क्वार्टरली डिस्काउंटिंग ऑफ द क्वार्टरली लीज कैश फ्लोज, इग्नोरिंग क्वार्टरली लीज कैश फ्लोज या क्वार्टरली डिस्काउंटिंग ऑफ these lease cash flows जो कि occurring on quarterly basis। इस तरह का आप एक जुमला लिख देंगे तो this will be enough that you have noted it and then your answer में आपने ये specify कर दिया कि it includes this and it doesn't include this। यहाँ तक आप सब पहुँच जाएं तो ये हो गया पहला मेथड जो हमें कह रहा है फ्री कैश फ्लो का कि आपकी कंपनी की जो वैल्यू है that's approximately 655 बिलियन। फ्री कैश फ्लो टू कंपनी से डिस्काउंटिंग की हमने तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ द कंपनी आ गई। वैल्यू ऑफ द कंपनी जो है
दैट मीन्स ई प्लस डी, उसमें से डी की वैल्यू हमने माइनस कर दी, सो वी अराइव एट द वैल्यू ऑफ इक्विटी। यहाँ तक आप पहुँच जाएँ तो फिर हम नेट एसेट्स वैल्यूएशन के थ्रू करते हैं, फिर हम आते हैं जो है वो पी रेशियो एंड देन दी डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। जिस सीक्वेंस पे हमारे पास डेटा है उसी सीक्वेंस से हम वैल्यूएशंस करते जाते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम नेट एसेट बेस्ड वैल्यूएशन पे, और बुक वैल्यूज़ ही हमें गिवन है, मार्केट वैल्यूज़ हमें बताई नहीं गई। तो नेट एसेट बेस्ड जो वैल्यूएशन मेथड क्वेश्चन कह रहा है कि आप करें यूजिंग नेट एसेट वैल्यूएशन। तो नेट एसेट वैल्यूएशन तो सो आसान। इसमें हमें बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन है कितनी, वो है हमारे पास 420 बिलियन रुपीज़ इन बिलियन में। उसमें से आप लेस कर दें बुक वैल्यू जो कि किसकी है, ऑफ शालकोट, क्योंकि उसकी रियलाइजेबिलिटी डिफरेंट है। शालकोट की 40 माइनस कर दें, ऐड कर दें जो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपको क्या नज़र आ रही है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो आप 15 अरब आप हासिल करेंगे, 2.5 आप इस पे ख़र्चा करेंगे तो नेचुरली 12.5 की नेट पैसे मिलेंगे। तो ये बन गई आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एसेट्स की। उसमें से हम लायबिलिटी माइनस कर दें और ऐड कर दें क्या 392.5, ये बन गई एसेट्स की वैल्यू। इसमें से लेस कर दें आप डी 50, तो आप पहुंच जाएंगे वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स या इक्विटी पे। तो ये नेट एसेट्स बन जाएंगे जिसको हम इक्विटी कहते हैं। ये बन जाएगा 342.5, है ना, 50 माइनस कर दें स्ट्रेट 342। What it ignores on a prudent basis is any potential receipt from the insurance claim, क्योंकि अभी डिस्प्यूटेड है, इंश्योरेंस कंपनी डिस्प्यूट कर रही है, आपने क्लेम लॉन्च किया हुआ है, यू रियली डोंट नो द आउटकम। जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी बेसिस पे इट इज़ बेटर दैट वी इग्नोर एनी पॉसिबल रिकवरी फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम, है ना। तो ये बात आप लिख दें कि इसमें से assuming there is on a safe side, conservative side, you are assuming there will be no recovery from insurance claim based on that. तो ये हो गया net asset based valuation which is so आसान। अच्छा, उसके बाद आइए, उन्होंने हमें गिवन है PE रेशो की पे चलते हैं हम, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, राइट। अच्छा, PE रेशो में हमें कहा गया है कि हमारी जो अर्निंग्स हैं हैव बीन सिमिलर टू कैश फ्लोज, ठीक है ना। अब अर्निंग्स जो कैश फ्लोज गिवन है उन्हीं को हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब PE रेशियो की वैल्यूएशन करें तो हमारे पास दो PE रेशियोज़ हैं। एक PE रेशियो है हमारे पास अपना और एक PE रेशियो है इंडस्ट्री का। जो हमारे पास अर्निंग्स हैं वो भी एक करंट अर्निंग्स भी हैं और एक फ्यूचर ईयर 1 की अर्निंग्स भी है, ठीक है ना। जनरली यू यूज़ जो आपकी लेटेस्ट अर्निंग्स हैं उसे लेते हैं, या आप फोरकास्ट अर्निंग्स लेते हैं। तो फोरकास्ट हम अगर नेक्स्ट ईयर की ले लें, हम इन दोनों से वैल्यूएशन कर देते हैं, विच इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा, अब आप करें ओन पी रेशियो बेस्ड वैल्यूएशन। पहले तो मैं लिख देता हूँ पी बेस्ड वैल्यूएशन, प्राइस अर्निंग रेशियो बेस्ड वैल्यूएशन। तो उसमें एक हमारे पास अपना ओन PE है और एक है हमारे पास इंडस्ट्री PE, राइट। जो ओन PE है वो है 19.9 और जो इंडस्ट्री का है वो कम है 14.6, राइट। अगर तो हम करंट अर्निंग्स ले लें, तो करंट अर्निंग्स को देखें तो वो है 30 बिलियन, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यूएशन क्या आ गई, वैल्यू बेस्ड ऑन करंट अर्निंग्स, वो निकाल लेते हैं। 19.9 into 30 is 597 बिलियन, और
30 into 14.6 is 438 बिलियन। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम अर्निंग्स करें ईयर 1 की या 2023 की अर्निंग्स लें तो वो है 35, और वो जो इन्फ्लेशन करके कितनी बनी थी 37.8। अगर हम 37.8 की बेसिस पे चलें तो देखें फिर क्या आती है फिगर, वैल्यू क्या बनती है। मल्टीप्लाई कर दें 19 पॉइंट, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इसे 19.9 से, तो ये फिगर बन गई 752.2 बिलियन, और ये क्या बन गई 37.8 इंटू 14.6 इज 551.9। ठीक है ना जी। तो ये 4 वैल्यूज आ गई हमारे पास पी रेशो की बेसिस पे। इसे यूज़ करने का आर्गुमेंट ये है कि आपको कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हैं, कुरुमडी इज़ पार्ट ऑफ कोर्स पामीर हैज़ बीन ओवरऑल परफॉर्मिंग वेल, तो आपको बोर्ड कह रहा है कि पामीर की इंफॉर्मेशन को यूज़ करें। तो हमें पामीर की इंफॉर्मेशन की बेसिस पे चलते हैं तो हमारी वैल्यूएशन इज़ रेंजेस फ्रॉम तकरीबन 600 से 750 बिलियन। लेकिन हैविंग सेड दिस, अगर हम ये कहें कि हम इंडस्ट्री लें, और इसलिए इंडस्ट्री लें कि आपका जो इंडस्ट्रियल डिवीज़न है वो कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये पामीर का जो पी है वो तो बेस्ड ऑन दी ओवरऑल कंपनीज परफॉर्मेंस, जिसमें 4 बड़े परफॉर्मिंग यूनिट हैं और एक अंडर परफॉर्मिंग है। तो एक अंडर परफॉर्मिंग यूनिट के लिए तो बेहतर ये है, ज़्यादा प्रूडेंट ये है कि हम वैल्यूएशन अगर पी के थ्रू करें तो दिस इज़ मोर रेलिवेंट, बिकॉज इफ दिस इज़ एन अंडर परफॉर्मिंग यूनिट देन आई थिंक इट्स वैल्यूएशन शुड बी इन लाइन विद द इंडस्ट्री पी। तो ये इसका एक ज़्यादा बेहतर रैशनल या लॉजिक नज़र आती है। और अगर इंडस्ट्री पी को देखें तो वो हमें कह रही है कि आप 438 से 550 बिलियन तक की आपकी रेंज है वैल्यूएशन की, गिवन करंट अर्निंग्स वर्सेस दी फोरकास्ट अर्निंग्स। यहाँ तक पहुँचे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट है वो है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, अब आइए हमें डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें गिवन है कि पामीर का वैक गिवन है, फिर बताया गया है पामीर कोटेड इक्विटी बीटा इज 0.8 कोटेड इक्विटी बीटा, और फिर जो नीचे हमें आरएफ और मार्केट प्रीमियम की इंफॉर्मेशन है, इसके थ्रू हम के निकाल लेंगे। फिर हमें ये बताया गया है पामीर करंटली रिटेन्स 60% ऑफ अर्निंग्स फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। सो इफ यू रिटेन 60%, then your dividend payout is 40%, right? Historically, shareholders have seen annual growth in dividends average at approximately 10%. तो 10% की आपको ग्रोथ मिली है। अब आपके पास 3 साल की तो उन्होंने एग्जैक्टली आपको अर्निंग्स गिवन है, जिसे वो कह रहे हैं फ्री कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। इसी को उन्होंने कहा जी एक्सपेक्टेड हम अर्निंग्स कहें। इसमें से इंटरेस्ट की क्या अमाउंट होगी वो हमें नहीं बताया गया, ना कोई मेथड है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर लें कि केडी क्या है। तो हम एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट पे तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर हम इसी को एक अप्रॉक्सीमेशन कर लें, जो फ्री कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स उन्होंने गिवन है, विच इज़ कहा गया है कि अर्निंग्स हैव बीन सिमिलर टू दीज कैश फ्लोज, तो हम इसको अगर नेट प्रॉफिट करें तो 3 साल के तो नेट प्रॉफिट है हमारे पास। तो हम इनका तो 40% करते हैं तो डिविडेंड आ जाएगा, राइट। और उसके बाद जो उसके बाद की ग्रोथ है उसके लिए हम 10% अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकली इन्होंने कहा ये है। और दूसरा ये कि हम 10% अगर हमें बहुत लगे तो हम एवरेज ये भी कर सकते हैं कि उसके बाद 3% की हम ग्रोथ भी ले लेते हैं। दोनों से देख लेंगे। पहले मैं निकाल लेता हूँ के शुड बी इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा इक्विटी। ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। आर एफ नाउ गिवन है, मार्केट प्रीमियम गिवन है विच इज़ आर एम माइनस आर एफ 6 इंटू 0.8
तो अगर हम करें 9 + 4.8 इज़ 13.8%। के ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है 13.8, हमने कैलकुलेट कर ली बेस्ड ऑन दी गिवन इंफॉर्मेशन, राइट। अब आ जाए फ्यूचर डिविडेंड्स। ज़ीरो, 1, 2, 3, then year 4 and onwards, रुपीज़ इन बिलियन। हमें गिवन है क्या, हमें अर्निंग्स गिवन है, इसका 40% अर्निंग्स का जो हमने निकाली हैं, पहले हम अर्निंग्स लिख लेते हैं यहाँ जो हमने कैलकुलेट की 37.8, फिर उसके बाद 45.8 और तीसरी निकाली थी हमने 53.6, ठीक है ना। तो इसका अगर हम 40% कर लें डिविडेंड्स, इसका 40% पे आउट रेशो की बेसिस पे, तो वो क्या फिगर बनेगी, ज़रा हम ये निकाल लें। 37.8 into 0.4 is 15.1, then 45.8 divided by into 0.4 is 18.3, then we have 53.6 into 0.4 is then 21.4, right। ये बन जाते हैं हमारे डिविडेंड्स। इसके बाद हम अज्यूम कर सकते हैं ग्रोथ एट द रेट ऑफ 10%, राइट। तो हम इसे इंडिविजुअली डिस्काउंट करें, इसे इंडिविजुअली करें, इसे करें फॉर द ग्रोथ मॉडल, देन ईयर 3 बिकम्स टाइम 0, जैसे फ्री कैश फ्लो में भी हमने देखा। तो फॉर डिविडेंड्स ईयर 4 टिल इन्फिनिटी, इनकी जो पीवी है अगर हम वो निकालें तो वो हो जाएगी 21.4, 1 + 10%, KE 13.8% माइनस 10%, और वो वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू कहाँ होगी, वो वैल्यू होगी एज एट ईयर 3 एंड। तो हम ईयर 3 के कैश फ्लो में इन डिविडेंड्स में हम इसे ऐड कर देंगे। 21.4 into 1.1 डिवाइड बाय 0.038, ये बन गई 619.5। अच्छा, ये मैंने सिंगल डिजिट तक लिया है, आप डबल डिजिट तक लेंगे थोड़ी फिगर डिफरेंट आ जाएगी। 619.5 ये कहाँ है, ये ईयर 3 के एंड पे है, तो ये हम उठा के यहाँ रख सकते हैं 619.5, और हम इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर दें 15.1, 18.3, और हम इन दोनों को ऐड कर दें 61 plus 21.4, this becomes 640.9। इसे डिस्काउंट करेंगे हम 1.138 पावर 1, 1.138 पावर 2, के से डिस्काउंट होंगे नेचुरली 1.138 पावर 3, तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी। वो क्या आएगी, 15.1 डिवाइड बाय 1.138 प्लस 18.3, 1.138 पावर 2 प्लस 640.9 डिवाइड बाय 1.138 पावर 3, तो ये बन जाएगी 462.3 के करीब इसकी वैल्यू आ गई। 462.3 रुपीज़, 462.3 बिलियन, राइट, वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब देखें सजेस्टेड सॉल्यूशन में एक चीज़ उन्होंने ये की है, ये उन्होंने ईयर 1 का ये निकाला और डी नॉट और उस पर स्ट्रेट 10% ग्रोथ लगा दी। दिस कुड बी वन अजम्पशन कि जी हिस्टोरिकली चूँकि 10% से ही ग्रोथ हुई है तो ये डिविडेंड इसी फॉर्म में ग्रो होंगे। आई थिंक द बेटर वे इज़ वंस वी हैव द अर्निंग्स फॉर द नेक्स्ट 3 years, तो बजाय उस पर हम 10% सब पे स्ट्रेट लगा दें, I think we can calculate the dividend for the respective 3 years and then we apply that 10%, right? So in my view, probably that is better because history is generally for the 3 years, as history is saying, is not a good guide in that sense कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही पिछले 2 साल, अगले सालों में आप इंक्रीज परफॉर्मेंस देख रहे हैं।
तो जो डेटा गिवन है उसकी बेसिस पे तो हम 40% जब आप पे आउट फॉलो कर रहे हैं और 60% आप रिटेन करते हैं तो उसकी बेसिस पे हमें डिविडेंड्स इंडिविजुअली निकालने चाहिए। दिस इज़ अ बेटर अप्रोच। लेकिन अगर कोई सजेस्टेड सॉल्यूशन के हिसाब से भी कर ले तो भी ठीक है, बट आई फील दिस इज़ अ बेटर अप्रोच। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो और आप कर सकते हैं वो ये कि जी एक सर्टेन पॉइंट के बाद, ठीक है ना, व्हाट यू कैन डू इज कि दिस 10% की कंटिन्यूस इन्फिनिटी तक ग्रोथ इज़ अ वेरी हाई ग्रोथ रेट। तो जैसे कि हमने फ्री कैश फ्लो में किया, आप ये भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन और कर लें। हम कहेंगे अच्छा, अज्यूमिंग इफ 3% ग्रोथ रेट कंटिन्यूज आफ्टर दैट। हिस्टोरिकली आप एक सर्टेन ग्रोथ देखते रहे, लेकिन अब चूंकि डिविडेंड्स डिफरेंट फॉर्म में आ रहे हैं क्योंकि अर्निंग्स डिफरेंट तरीके से हैं तीनों सालों में, और नॉमिनल अर्निंग्स और उसकी बेसिस पर डिविडेंड्स, तो इस 30 साल के बाद अगर हम एक कंजर्वेटिव 3% ग्रोथ ले लें तो फिर वैल्यूएशन क्या होगी, आप ये भी करके देख सकते हैं। आप करेंगे, अगर हम देखें, हम सिर्फ ये रखें कि अच्छा, अज्यूमिंग ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस, अज्यूमिंग a 3% growth rate from year 4 onwards. So assuming a 3% growth rate from year 4 onwards, year 4 onwards अगर हम 3% ग्रोथ रेट अज्यूम करें, बेटा बाहर ये बातें बंद करवा दें, तो फिर क्या होगा, फिर बाकी सारी वर्किंग तो वही है, सिर्फ यहाँ हम 10% की जगह 3% कर दें। जब हम ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 21.4 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाय 0.108, तो ये 204.1 की फिगर बनेगी कोई तकरीबन 204.1, और 204.1 को अगर हम यहाँ डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिगर चेंज हो जाएगी और उसकी बेसिस पे फिर वैल्यू भी डिफरेंट आ जाएगी। तो 204.1 प्लस 21.4 करें तो ये बन जाएगी 225.5, तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी 180 के आसपास, दिस विल बिकम 180.4, फिर ये फिगर बन जाएगी 462 की जगह 180.4। तो हम दोनों से जो है ना, ये अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ठीक है, 10% इज ओके। एडिशनल ये वर्किंग करना चाहें तो आप दिखा सकते हैं कि जी अगर हम अज्यूम करें ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस दैट ग्रोथ रेट वुड नॉट बी 10% बिकॉज कंसिस्टेंट 10% इज अ वेरी हाई ग्रोथ रेट दैट यू आर प्लानिंग कि जी हमारी अर्निंग्स, और ये पॉसिबल भी है बहरहाल कि आप क्योंकि रिटेन कर रहे हैं अर्निंग्स एंड यू आर फ्लोइंग बैक दोज अर्निंग्स, तो ये कर सकते हैं। लेकिन इन कंसिस्टेंसी विद द फ्री कैश फ्लो, क्योंकि वहाँ हम कैश फ्लो की 3% के हिसाब से ग्रोथ अज्यूम कर रहे हैं, अगर हम वो देखें ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस, तो फिर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से वैल्यू बन जाती है 180.4। तो ये वैल्यूएशन के चारों मेथड हो गए, ठीक है। इसने हमसे ये नहीं पूछा कि आप हर मेथड के प्रॉस एंड कॉन्स बताएं, तो वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उन्होंने हमसे ये पूछा है आप ये बताएं कि किस प्राइस पे ये इशू होना चाहिए, राइट, स्टॉक एक्सचेंज में जब आप लिस्ट करने जाएंगे, उसकी हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक पहुँच जाएं, हम समरी लिख लेते हैं सारी वैल्यूएशन जो हमारी आई हैं, 180.4, 462.3, फिर जो और भी वैल्यूएशन आई हम उनको भी लिख लेते हैं एक जगह, और फिर उसके बाद हम कमेंट्री थोड़ी सी कर लेंगे। अब ये हिस्सा मैं मिटा रहा हूँ। एक हमारे पास फ्री कैश फ्लो की वैल्यूएशन आई, फ्री कैश फ्लो की वैल्यूएशन आई हमारे पास रुपीज़, ऑफ कोर्स रुपीज़ एंड बिलियन, एक शायद आई थी 60, ये वैल्यूएशन आई थी 655 बिलियन, 655 बिलियन की एक वैल्यूएशन आई थी हमारे पास, राइट। फिर हमारे पास वैल्यूएशन आई नेट एसेट्स, नेट एसेट्स की बेसिस पे हमारे पास आई थी 342.5। फिर हमारे पास पी रेशो, पी की बेसिस पे 4 वैल्यूएशन हुई, ओन, और उसके बाद ओन की 2 वैल्यूएशंस थी, और फिर इंडस्ट्री पी की बेसिस पे भी 2 वैल्यूएशंस थी। तो हम ओन की जो 2 वैल्यूएशन देख लें जो हमारी अपनी पी की बेसिस पे थी, वो अराउंड 597,
और दूसरी थी 752.2 और नीचे थी 438 और 752.2। उसके बाद आ गई हमारे पास DVM की वैल्यूएशंस। DVM की भी हमने दो वैल्यूएशन निकाली, 10% जो नॉर्मल ग्रोथ या 3%, तो 462.3 to 180.4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट दोबारा से रीड करते हैं और फिर हम इसके पीछे थोड़ी सी कमेंट्री की डिस्कशन करते हैं। ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यूएशंस आई हैं, इसको अगर हम छोड़ भी दें तो इफ़ेक्टिवली आप देखें तो 340 to 750 तक की वैल्यूएशन आ रही है, राइट। ये एक आउटलायर है 180, ये भी 342 नेट एसेट है ना, इसकी बेसिस पे ये वैल्यूएशन है। सो द जनरल रेंज जिसमें अगर हम देखें कॉमन में तो ये 750, अच्छा ये इंडस्ट्री की 752 नहीं है, ये दो बार रिपीट हो गया। इंडस्ट्री में 752 की जगह 551.9 है, सॉरी दिस इज 438 एंड देन 551.9। तो हमारी जो रेंज जनरली चल रही है, अगर आप देखें डिविडेंड भी 460 पे आया है, इंडस्ट्री के पी पे करंट अर्निंग्स पे चले तो 438 है, अपने उस पे चले तो हाईएस्ट ये है 752, और अगर हम इस आउटलायर को छोड़ें तो लोवेस्ट 340 है। अच्छा जी, और फ्री कैश फ्लो कह रहा है इन बिटवीन 655। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमिन अ रेंज ऑफ वैल्यूएशन यूजिंग द वैल्यूएशन मेथड सेट आउट बाय पामीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिकमेंड अलोंग विथ रीजंस एंड इशू प्राइस एट विच न्यू शेयर्स विल बी ऑफर्ड। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप फ्री कैश फ्लो मेथड की बेसिस पे चलते हैं तो यू शुड बी यूजिंग दिस। हाउएवर यू हैव टू जनरली, जब आप शुरू में ऑफर करते हैं तो यू ऑफर एट अ डिस्काउंट, और जनरली जब वैल्यूएशन आप कर रहे होते हैं तो अगर तो आप एक इन्वेस्टर को वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से करते हैं तो जनरली आप पी रेशो और FCF को देखते हैं। स्टॉक मार्केट में जब आप देखते हैं तो फिर आपको DVM को भी देखना पड़ता है, बिकॉज यू आर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। नेट एसेट्स में नॉट बी गुड बिकॉज वी रियली डोंट नो जो बाकी एसेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू इज द रियल फेयर वैल्यू है या हिस्टोरिकल कॉस्ट है, तो ये हमें इसका पता नहीं है। दिस इज़ टू कंजर्वेटिव। तो अगर हम इनको देखें और अगर हम इनमें देखें तो अगर अपने पी को ना भी यूज़ करें, इंडस्ट्री के पी को यूज़ करें, तो हमारे पास जो रेंज आती है वो 438 से चलें, और अगर हम कहें कि हमारा ओन पी विल मे बी इज़ टू, आप यूँ कहें कि ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो आपका यूनिट है जिसको आप डिस्पोज करने जा रहे हैं वो अंडर परफॉर्मिंग है एज कम्पेयर टू योर ओवरऑल कंपनी। तो अगर हम इंडस्ट्री के पी को भी देखें तो हम इंडस्ट्री के पी में करंट से लेके से 438 से चलें तो फ्री कैश फ्लो 655 तक की हमारे पास वैल्यूएशन आती है। हमारा DVM मॉडल भी 460 के आसपास की वैल्यूएशन कह रहा है, तो हम इसके दरमियान वैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन हाउ we see the market will react to it. Of course you have to give some discount, of course एक attractive price भी करनी है, बहुत ज़्यादा लोअर प्राइस भी नहीं कर सकते, बहुत हाई भी नहीं कर सकते, इस रेंज के अंदर है ना। तो आप कह सकते हैं कि समवेयर बिटवीन आप 462 to 550 के दरमियान की वैल्यूएशन ज़्यादा जो है ना वो मार्केट के लिए एक्सेप्टेबल है। मार्केट के लिए इंडस्ट्री पी के रेशो के हिसाब से भी आप जो आप फोकास्ट देंगे उसके लिए भी एक्सेप्टेबल है। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल भी अगर आप देखें अपने फोकास्ट के हिसाब से तो वो भी आपको यहाँ ले जा रहा है विच इज़ 462। तो यस, समवेयर बिटवीन 450 to 550 इज़ रीजनेबल। फ्री कैश फ्लो ज़्यादा बता रहा है, ऑफ कोर्स वो एक अपसाइड गेन है जो मिलेगा अगर मार्केट, शेयर होल्डर्स को भी कुछ गेन मिलना चाहिए जब आप लिस्टिंग पे जा रहे हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आप कितनी परसेंटेज ऑफ फ्लोट कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि कितने बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें आएंगे या सिर्फ छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आएंगे, बिकॉज फॉर स्मॉल माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल इज़ मोर अप्रोप्रिएट। और ये भी आप देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारा ऑफलोड एक साथ करें, आप पीस मील में भी ऑफलोड कर सकते हैं। पहली आपने लिस्टिंग की तो आपने सर्टेन परसेंटेज ऑफलोड की, मार्केट का कॉन्फिडेंस आया, वैल्यू और इम्प्रूव हुई, और आपने उसके बाद एक सर्टेन वैल्यू पे फिर और ऑफलोड किया। सो यू कैन डू दैट ऑफलोडिंग in bits and pieces as well. You may need not to completely offload the company या majority शेयर होल्डिंग्स को आप ऑफलोड करना ज़रूरी नहीं है अगर आप लिस्टिंग के थ्रू जा रहे हैं। तो यही क्वेश्चन कह भी रहा है,
रिकमेंड अलॉन्ग विथ रीजंस, यही मोटी मोटी बातें आप लिख देंगे कि कुरंडी के द न्यू शेयर्स विल बी ऑफर्ड टू इन्वेस्टर्स प्रायर टू इट्स कमेंसिंग टू ट्रेड ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा, डिस्कस रीजंस व्हाई द शेयर्स में ट्रेड एट अ हायर और अ लोअर प्राइस देन द प्राइस सजेस्टेड बाय द फ्री कैश फ्लो। सवाल ये है कि फ्री कैश फ्लो एक बहुत ज़्यादा हम समझते हैं कि एक रिलायबल मेथड है, और वाई अगर लो या हायर जो मार्केट में ट्रेड होती है शेयर की प्राइस, वो फ्री कैश फ्लो मेथड से ऊपर या नीचे क्यों होती है। तो उसके मोटे मोटे 2-3 रीज़न हैं जो हमने पढ़े भी हैं। एक ये है कि देयर आर टाइम्स मार्केट की एफिशिएंसी भी अब डिपेंड करती है, मार्केट में नॉट बी कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट, इफ द मार्केट इज सेमी स्ट्रॉन्ग और इफ द मार्केट इज वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी पे है तो फिर मार्केट डिफरेंटली बिहेव करती है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि जो है मार्केट, अब आपने एक फोरकास्ट किया है और आपका फोरकास्ट जो है वो एक सॉर्ट ऑफ आपने एक प्रॉमिसिंग फोरकास्ट किया है कि जी 23 में हमारी ज़्यादा प्रॉपर्टी चली जाएंगी, 24 में और 25 तक हम सारी वेकेंट प्रॉपर्टीज़ को जो है वो लेट आउट कर लेंगे। तो ये आपकी एक फोरकास्ट है। मार्केट में नॉट बाय दैट फोरकास्ट बेस्ड ऑन द लास्ट 2 years परफॉर्मेंस। सो योर फोरकास्ट ऑफ द फ्री कैश फ्लो एंड योर अजम्पशंस, मार्केट्स अजम्पशंस में भी डिफरेंट फ्रॉम दोज, राइट। ये भी एक रीज़न हो सकती है। और तीसरा जो है एक सेंटिमेंटल, जैसे मैंने बात की, मार्केट की एफिशिएंसी भी, और मार्केट एट टाइम्स इज़ नॉट, जो मार्केट में सेंटिमेंट्स हैं वो ज़्यादा मैटर भी कर रहे होते हैं, और फिर मार्केट में जो है वो पी रेशियो बेस्ड के हिसाब से भी मार्केट एट टाइम्स आपके कैश फ्लोज को क्लब करके एक ओवरऑल कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी देख रही होती है चीज़ों को। तो जब आप एक सेपरेट यूनिट भले बन भी जाएं, लेकिन आपकी ओनरशिप जो है भले उसी ग्रुप के पास है, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट आपको एट टाइम्स ओवर वैल्यू उस वजह से भी कर लेती है, जिसे हम बूट स्ट्रैपिंग इम्पैक्ट भी कहते हैं, जो हमने वैल्यूएशन में पढ़ा है। तो ये 2-3 बातें हम लिख सकते हैं इसमें पार्ट बी में, जो कि 3 मार्क्स का है। अच्छा, तीसरा जो पार्ट है, पार्ट सी, एडवाइस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ड्यू डिलिजेंस which will be expected by potential investors to support the new company listing before it proceeds with the spin-off। तो जब आप ये इशू से पहले, जब आप अपना डॉक्यूमेंट इशू करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए लिस्टिंग से पहले, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट में नेचुरली वैल्यूएशन के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें देनी होती हैं इन्वेस्टर्स का जो डेक होगा उसमें। और उसमें आप क्या क्या देते हैं, जनरली आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बताते हैं, उसके बाद आप अपनी फ्यूचर फोरकास्ट की डिटेल्स देते हैं, जो आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि अगले 3 सालों में उसकी अजम्पशंस, उसकी बेसिक्स, आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन ऐसी होगी, आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि यू विल बी एबल टू लेट आउट मोर, अपने एक्सपेंसेस की, और जो भी मैक्रो इकोनॉमिक और कंपनी स्पेसिफिक आप अजम्पशंस ले रहे हैं उनकी आप एक रीजनिंग देंगे, वो आप पब्लिश करेंगे साथ अपने फोरकास्ट, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। फिर चूँकि ये आपकी रियल एस्टेट की है तो आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ का भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ हैं, कैसी हैं, ओनरशिप स्टेटस, टाइटल स्टेटस, कहीं कोई लिटिगेशन तो नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। कंटिंजेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ आपकी एक कंटिंजेंसी जो शालकोट जो कोयटा की प्रॉपर्टी है उसके बारे में आपको डिटेल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि क्या हुआ है उसको, ताकि इन्फॉर्म करना पड़ेगा इंश्योरेंस का इशू क्या है, डिस्प्यूट क्या है। इसके अलावा कोई और कंटिंजेंसीज़ हैं, चाहे वो टैक्स की हैं, चाहे वो कोई HR रिलेटेड है, चाहे वो कोई और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स की कोई लिटिगेशन है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है जब आप एक जो है अपने ड्यू डिलिजेंस की इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को देंगे। तो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट ऑल दिस लीगल, HR, ठीक है, और आपकी फाइनेंशियल, उस पर्सपेक्टिव से आपको प्रॉपर्टी की केसेस में प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देनी पड़ेगी, along with historical performance and future forecast in terms of numbers that you are supposed to give। So ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आप ये मोटी मोटी बातें अगर लिख देंगे तो आई थिंक दैट जनरली इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, सो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन विच इज़, वो आपसे पूछते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बताएंगे, स्पेशली जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज से रिलेटेड हैं, लीगल केसेस से रिलेटेड हैं, डॉक्यूमेंटेशन के कोई फ्लॉज हैं, कोई लीजेस एक्सपायर हो रही हैं आपकी प्रॉपर्टी की, है ना, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या है, हो सकता है वो वैल्यूएशंस भी आपसे मंगवा लें कि लेटेस्ट वैल्यूएशंस क्या हैं उनकी। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो इन्वेस्टर जनरली एक्सपेक्ट करता है। तो आई थिंक विद दिस
ये हम 14 + 3 17 और 4 21 मार्क्स का क्वेश्चन इस वॉज ऑल्सो हमने कैटेगराइज किया था कि इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी। ये सारे मेथड्स हमने पढ़े हुए हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो भी कोई इसमें जो डिस्कशन पार्ट है वो भी कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। सो आई थिंक विद दिस वी कंक्लूड दिस क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में जो है वो हमने उसको मीडियम क्लासिफाई किया है क्योंकि उसमें वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। उसमें भी बेसिकली तो CAPM और वैक कैलकुलेशन है, एक छोटा सा पार्ट है जिसमें उसने APT आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी की डिस्कशन की है, तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ तक आप पहुँच जाएँ, क्वेश्चन 2 कंक्लूड करें तो फिर क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।